Back to the constitutional law lecture series on near peer, and today we're going to discuss objective resolution. और मेरी screen आज नीचे है, so it's very weird. It's like I can see myself staring at myself. It's in my face too much. Anyways, I'll get used to it. Okay. Now objective resolution 1949 हम डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, सेलिएंट फीचर्स, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन केस लॉज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, फिर 8th अमेंडमेंट और ऑब्जेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बीइंग सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ इट, कल्मिनेशन ऑफ द डिबेट. ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949. हमने बचपन से इसके मुतालिक सुनते आए हैं. करारदादे मकासद जो है ये हम पढ़ते थे उर्दू में, और that's not a very bad handwriting, is it? Anyways, introduction. Objective resolution is one of the most important documents in the constitutional history of Pakistan. It was passed by the first Constituent Assembly on 12th March 1949 under the leadership of Liaquat Ali Khan. The objective resolution is one of the most important and illuminating documents in the constitutional history. Okay, that's repetitive. It laid down the objectives on which the future constitutions of the country was to be based, and it proved to be the foundational stone of the constitutional development of Pakistan. इसमें एक चीज़ ये कि आप कहें ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीएम्बल के तौर पे इसने सर्व किया, दिबाचे के तौर पे. The most significant thing was that it contained the basic principles of both Islamic political system and Western democracy. Its importance can be ascertained from the fact that it served as preamble for the constitution, अच्छा मैंने लिखा है, and ultimately became the part of the constitution when the 8th amendment in the constitution of 1973 was passed in 1985. तो आर्टिकल 2A के साथ ये सब्सटेंटिव पार्ट बन गया, उसको भी डिस्कस करेंगे. The objective resolution was adopted. बैकग्राउंड इसका 1949 में लियाकत अली खान ने के टाइम पे पास हुई. Out of 75 members of the assembly, 21 voted for it. All the amendments proposed by minority members were rejected. Consequently, all of them voted against it. The resolution proclaimed that the future constitution of Pakistan would not be modeled entirely on European pattern, but on the ideology and democratic faith of Islam. फिर sovereignty of Allah. इसके salient features में सबसे पहला, laid down that sovereignty over the entire universe belongs to Allah alone, and the authority which he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits described by him as a sacred trust. Now this is different. This is what is different. ये आप लिख भी सकते हैं नीचे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी से. जब हमने सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट किया, आप वहां पर ये उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं. वेस्टर्न सॉवरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी में सॉवरेंटी बिलोंग्स टू पीपल, ठीक है, अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट सॉवरेंटी बिलोंग्स टू पीपल. बट इन द इस्लामिक और जो मजहबी नुक्ता नजर है उसके मुताबिक भी, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, एंड व्हिच ही हैज डेलीगेटेड दैट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज अ सेक्रेड ट्रस्ट, who then exercise that through elected representatives. तो ये इस तरीके से है, ठीक है. तो ये फर्क है आपके दोनों के अंदर. उसके बाद representative democracy, sovereignty belongs to Allah, लेकिन और पब्लिक के थ्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज करेंगे. the authority is to be exercised to the chosen representatives. तो ना हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और ना वेस्टर्न मॉडल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. हमारे यहाँ इस्लामिक मॉडल ऑफ इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. प्रिंसिपल्स इनएंसिएटेड बाय इस्लाम के पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम आर टू बी ऑब्जर्व व्हिच आर डेमोक्रेसी, फ्रीडम, टॉलरेंस, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फेयर प्ले. Living according to Islam, Muslims of Pakistan shall be enabled to live individually as well as collectively according to the teachings and requirements of Islam. Adequate provision shall be made for the protection of minorities. Right to freely practice and profess their religions and develop their own cultures shall be protected. ठीक है. Federal form of government, ये कहा गया कि Pakistan shall be a federation. The constituent unit shall be autonomous with such boundaries and limitation on their powers as may be prescribed. क्योंकि limitations और powers में limitations बाद में कानून साजी के जरिए, आइन साजी के जरिए उस पर लिमिटेशंस लगाई जाएंगी, कदगने लगाई जाएंगी, मगर जनरली वो ऑटोनमस होंगी क्योंकि हम एक वफाक बनेंगे, वफाकी निज़ाम हुकूमत होगा. बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल
economic and political justice, freedom of thought and expression, freedom of religion, freedom of association. These shall be subject to law and public morality. Independence of judiciary. Independence of judiciary shall be secured for the dispensation of impartial and speedy justice, so that judiciary can be an impartial guardian of the constitution. Safeguarding integrity of Pakistan. Integrity of territories of the federation shall be safeguarded. Independence of federation. The rights of federation, including its sovereign rights on land and seas, shall be safeguarded. ये काफी बेसिक चीजें हैं. अब हम आते हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजों पे. क्रिटिकल एनालिसिस बड़े प्यार से लिखना है आपने, बड़ा शुगर कोट करना है, क्योंकि यहां तक हर कोई लिखेगा. Everybody will write this in the objective resolution. बट जो अब हम करने जा रहे हैं वो हम तूफानी चीजें करने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो मेरा भी दिल करता है कभी कि हम कुछ तूफानी करें, तो वो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ. ये वो चीजें हैं जो फिर आप डिस्टिंग्विश करेंगे दूसरे कैंडिडेट्स के साथ. पहले तो क्रिटिकल एनालिसिस में क्रिटिक नॉन मुस्लिम मेंबर्स की क्या थी. द नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विगरसली अपोज्ड इट एंड ऑल ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट इट. Biraj Chandra Mandal said that Jinnah had unequivocally said that Pakistan would be a secular state. तो अब आप इसके नीचे कुछ लाइंस ऐड करें कि even though that critique there may be unfounded, ठीक है, वो क्रिटिक मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकती, but greater effort should have been made to bring the non-Muslim members into the fold, and some concessions needed to be given so that it could become more inclusive. प्यार से जरा, बड़े बड़े प्यार से आपने क्रिटिक करनी है. ये आप इसकी ये कोटेशन है, ये आप इनकी ही बिराज चंद्रा मंडल की, ये मैंने यहाँ पे कोट की है. Subsequent to the passage of the objective resolution, I think no, this is by someone else, I need to confirm. Subsequent to the passage of the objective resolution, all of Pakistan's constitutions contained religious provisions, and the name of the country was changed from the Republic of Pakistan to the Islamic Republic of Pakistan. The national debates over the kind of nation, state and society envisaged led to compromise being made with the liberal secular as well as the religious lobby. As a result, the Constitution of 1973, ये basically objective resolution के context में 1973 के Constitution पर criticism है. A consensus document became riddled with internal contradictions regarding citizenship. For example, Article 25 says that all citizens are equal before the law, while Article 2 says that Islam shall be the state religion, जैसे कि objective resolution में बताया गया. When one religion, to the exclusion of all others, is established as the state religion, how can the followers of other religions be equal citizens? And if they cannot be equal citizens, is democracy possible without citizenship equality? The denial of the right of non-Muslim citizens to become the head of the state or government also violates Article 25, which requires equality before law. ये पूरा बेसिक कोटेशन ना लिखें, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से फ्यूचर वाले कॉन्स्टिट्यूशंस में थोड़ी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जनरेट हो गई. ये आपको समझाने के लिए मैंने ये इसके अंदर ऐड किया था. ठीक है, मेरे से थोड़ा सा टाइपो हो गया था स्लाइड्स के अंदर, सो आई हैव री एडिटेड इट. तो आप समझेंगे. अभी हमने क्रिटिक ऑफ नॉन मुस्लिम्स पढ़ी है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शंस, ये सेकंड क्रिटिक है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रुबीना सेगल, एन एमिनेंट पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल, मौलाना मौदूदीज थ्योरी ऑफ डिवाइन सॉवरेंटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रेजोल्यूशन. ठीक है, तो ये वाली बात है कि मौलाना मौदूदी ने जो डिवाइन सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो हमने शुरू में भी पढ़ा है, वो बेसिकली रेजोल्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया. एंड इफ इसका आगे फिर क्या हुआ, विद द इफेक्ट दैट it created internal contradictions, according to Rubina Sehgal. आप नहीं कह रहे, रुबीना सहगल कह रही हैं. ठीक है, internal contradictions आ गई between Islamic components and let's say liberal components. तो equality of citizen being a liberal component and sovereignty वाला जो है वो दूसरा. फिर ये वाली बात उसके अंदर आती. Now it makes sense. तीसरी, क्वेश्चन ऑफ एफिकेसी, कि कितना इससे फायदा हुआ. तो जो मजहबी तबका था वो भी कहता है कि इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, कि मौलाना मौदूदी, who was a big supporter of the resolution, was disappointed with the fact that it did not produce any positive results. According to him, it was such a rain which was neither preceded by a gathering of clouds nor was it followed by vegetation. तो आपने critical analysis में
बेसिकली बताया कि इसके ऊपर क्या क्रिटिक थी। एक तो सबसे पहले कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स की क्रिटिक थी, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस जनरेट हुई, और यानी जो लिबरल तबके की तरफ से क्रिटिक है और एक रिलीजियस तबके की तरफ से क्रिटिक है ऑन द क्वेश्चन ऑफ एफिकेसी। वो तीनों आपने डिस्कस कर ली। फिर आपने कहा अ लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हैज इंस्यूड विद इन लीगल एंड जुरिडिकल सर्कल्स ऑन द नेचर, स्कोप एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये आपने पेपर में पूरा लिखना है, मैंने अपने लिए ये लिखा है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इसके ऊपर एक पूरी बहस छिड़ गई हुई है तब से। Many case laws have attempted to clarify the apparent contradictions within the constitution and make it a coherent whole. अब हम उसको देखते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सुप्रीम है, सप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेसिस पर सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविजन या किसी लॉ की कोई प्रोविजन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के खिलाफ है जो कि सिर्फ एक प्रीएम्बल है, तो क्या वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है? तो इस पे भी हमें दोनों तरह की आरा मिलती हैं केस लॉस में। इसकी फेवर में मिलती है आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब केस 1979। उसके अंदर ये लिखा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज टू बी ट्रीटेड एज ग्रुंड नॉर्म। ग्रुंड नॉर्म इज द टच स्टोन फाउंडेशन जिसके ऊपर कोई भी चीज चेक होती है। लेकिन हुसैन नकवी वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केस के अंदर कहा गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज नॉट ए सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट एंड इट वाज नॉट जस्टिसिएबल। कोई भी बंदा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ग्राउंड्स पे कोई चीज नहीं कह सकता कि जी ये चीज गलत है कोर्ट के अंदर। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ये तो है 19, ये भी पुराना केस है, ये भी पुराना केस है। 1985 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने 8th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की और उससे पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री निज़ाम ऑलमोस्ट प्रेसिडेंशियल निज़ाम बन गया। वन ऑफ द चेंजेस दैट ही डिड इन दिस 8th अमेंडमेंट वाज कि पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिर्फ दीबाचा था, प्रीएम्बल था, तो यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा हिस्सा नहीं था, उसका प्रीएम्बल था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस अमेंडमेंट के अंदर ये आर्टिकल 2A इंसर्ट किया। आर्टिकल 2A बेसिकली ये था कि जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो आर्टिकल 2A के अंदर आ जाए। नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज नॉट ओनली द प्रीएम्बल बट बिकेम द सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल हिस्सा बन गया आर्टिकल 2A की शक्ल में पूरा का पूरा। तो अब उसको वही वैलिडिटी मिल गई जो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी होती थी। अब उससे नेचर चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसकी इनकॉर्पोरेशन ये खड़े करती है क्या कि इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बीइंग सब्सटैंटिव पार्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यानी कि क्या ये कंट्रोल करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी अब ये उसका हिस्सा बन गई है। तो कैन सुपीरियर कोर्ट डिक्लेयर एनी डिसीजन ऑफ एनी अथॉरिटी व्हिच मे बी रिपग्नेंट टू द प्रोविजंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी जुडिशियल रिव्यू करते हुए क्या जिस तरह कोर्ट्स पहले करती हैं कि किसी भी अथॉरिटी के डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन के टच स्टोन पे देखती हैं, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के टच स्टोन पे भी देख सकती हैं? क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाने से ऑटोमेटिकली तमाम तर इस्लामी जो इंजंक्शन है, इस्लामी अहकाम है, वो क्या अहकाम भी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गए और बाय डिफॉल्ट वो भी बन गए हैं, जस्टिसेबल भी बन गए हैं? और तीसरा कि क्या ये एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोविजन है? सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोविजन वो होती है कि जिसको बेसिकली जो कि इंप्लीमेंट भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाती है। कुछ प्रोविजंस ऐसी होती हैं जो डेक्लेटरी होती हैं, जो प्रिंसिपल सेट करती हैं, जो पॉलिसीज की डायरेक्शन देती हैं, लेकिन उसकी जो डिटेल्स है ना वो नहीं होती। ठीक है, अगर constitutional provisions are not self-executing if they merely set forth a line of policy or principles without supplying the means by which they tend to be effectuated. ठीक है, लेकिन if a constitutional provision इस तरह की जो होती है नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग जो होती है, उसके अंदर फिर लेजिस्लेचर को बताना होता है कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी, क्या इसका मैकेनिज्म होगा। लेकिन वो प्रोविजन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग होती है जो कोई नई लेजिस्लेशन किए बगैर आप उस लेजिस्लेशन को उस प्रोविजन को ऑपरेटिव कर सकते हैं, कि उसकी इन्फोर्समेंट आप बगैर किसी एक्स्ट्रा किसी सप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन के कर सकते हो, तो वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है। ठीक है, तो ये 4 सवाल हमारे सामने आते हैं। अब it turns out there are varying opinions on the impact of objective resolution being made a substantive part of the constitution in the juridical and legal thought of Pakistan.
वो अब हम देखते हैं एक एक करके। अब ये सारी मजे की चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सवाल में लोग बिल्कुल सिर्फ सेलिएंट फीचर्स तक लिखते हैं, अगर आप ये चीजें लिखेंगे तो आप उनसे बहुत आगे होंगे। लेकिन अगेन हर बंदे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, अगर आपसे इतना ज्यादा याद नहीं होता है, रेफरेंसेस नहीं याद होते, आपको नहीं समझ आती, तो आप उतना भी कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर नॉट एन इक्वल पार्ट एंड एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू स्कोर इक्वली। जाहिर बात है जो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। मेरा एज एन इंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को केटर भी करूं, जो कम से कम वीकेस्ट स्टूडेंट को भी उठाकर बेहतर पेडेस्टल पर लेकर आऊं। बट वो बेहतर पेडेस्टल में लाते हुए मैं हमेशा हर एक को टॉपर नहीं बना सकता, तो मैं मीडियम वाले को अच्छा बनाऊंगा, अच्छे को बहुत अच्छा बनाऊंगा। तो जो बहुत अच्छा बन सकते हैं वो इस पे फोकस करें, इन चीजों पे। अच्छा, और बीइंग इम्पैक्ट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बीइंग मेड सब्सटैंटिव पार्ट। फेवर में ये कहते हैं कि हबीब बैंक लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद हुसैन के अंदर उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 2A जी है सप्रा कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सप्रा कॉन्स्टिट्यूशन, इट ओवरराइड्स एंड सुपरसीड्स एवरीथिंग इन लॉज एंड इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट। तंजीलुर रहमान, जस्टिस तंजीलुर रहमान का ये इस केस के अंदर ये रिमार्क्स थे कि ये सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन, ना ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट की कोई लॉ की प्रोविजन, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई आर्टिकल अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से अब कॉन्ट्रडिक्शन में आता है तो उड़ा दिया जाएगा। ये सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कहा था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस गुलाम मुस्तफा खर केस में कि इट कैन नॉट बी गिवन स्टेटस हायर देन एनी अदर प्रोविजंस। इसकी इक्वली इंपॉर्टेंस है जितनी बाकी प्रोविजंस की है। वन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन ऑन द बेसिस ऑफ अनदर प्रोविजन। ये ऑपोजिट व्यू। एक फेवर में व्यू ये है अजीज शेख वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स के सुपीरियर कोर्ट्स आर विद इन देयर कॉम्पिटेंस टू स्ट्राइक डाउन बोथ अंडर आर्टिकल 227(1) एज वेल एज आर्टिकल, ये आपसे भी रेलिवेंट नहीं है लेकिन जजमेंट में है तो मैंने लिखा है, एज वेल एज आर्टिकल 2A रेड विद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया था तो आर्टिकल 2A एंड इंसर्ट किया गया। इसके अगेंस्ट हबीब बैंक लिमिटेड वर्सेस वहीद टेक्सटाइल में उन्होंने दो तीन बातें की। उन्होंने इसके खिलाफ बात की कि इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम in even after becoming substantive part by its own force it cannot render the injunctions of contained in the Holy Quran Sunnah as integral part of constitution। तो वो जो सवाल था ना कि does it make Islamic injunctions also substantive part of constitution, जब objective resolution constitution का हिस्सा बना तो क्या Islamic injunctions भी constitution का हिस्सा बन गई हैं? तो ये कहते हैं नहीं इस केस के अंदर। judicial review of the legislation, Can superior court declare any legislation of any authority may be repugnant to the provision of constitution? तो ये कहते हैं नहीं, no legislation can be struck down on the touchstone of 2A। तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ डेक्लेरेशन है, ठीक है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं है, ठीक है, not self executing। Objective resolution is no more than a declaration defining ideology of Pakistan not capable of being enforced। ठीक है, ये enforce नहीं होगी। अब ये दोनों व्यूज एग्जिस्ट करते हैं, आप भी बहुत कंफ्यूज हैं, अवाम भी बहुत कंफ्यूज है। तो इसकी कल्मिनेशन अगर हम करें तो फिर दो लीगल केसेस ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो इन दोनों तो पूरी डिबेट को जो है ना कल्मिनेट किया, जिन्होंने अब जिस पे ज्यादा लीगल प्रिंसिपल जो है ना वो खड़ा है, वो ये शरफ फरीदी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रिंसिपल सेट हुआ, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। वो ये कहते हैं कि अगर दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हैं तो आपको किसी एक को स्ट्राइक डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कोई भी आपको प्रोविजन स्ट्राइक डाउन करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के टचस्टोन में। आप ऐसा करें, हार्मोनियसली इंटरप्रेट करें, आप हर इन दोनों तीनों प्रोविजंस को हार्मोनाइज करने की कोशिश करें, कीपिंग इन व्यू प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, मोरालिटी, पब्लिक गुड, रीड विद जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी कि आप उसको लूजली ऐसे इंटरप्रेट करें कि दोनों में कोई इनकंसिस्टेंसी ना रहे, ठीक है। फिर हाकिम खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टू अदर्स केस, इसके अंदर फिर उन्होंने बात बड़ी अच्छी सेट की। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट्स डू नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी लॉ इनवैलिड ऑन ग्राउंड ऑफ इट नॉट बीइंग विद इन लिमिट्स प्रोवाइडेड बाय लॉ ऑलमाइटी। उन्होंने कहा कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। Such plea would furnish a ground for legislative review, not judicial review। यानी जुडिशरी ऑन इट्स ओन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस तरीके से नहीं डिक्लेयर कर सकती। हाँ, जो लेजिस्लेचर को चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो वो चेंज करे, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। और वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 2A हैज नॉट फंडामेंटली ट्रांसफर्ड द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज इनविजेज फ्रॉम इट्स आउटसेट। ट्रांसफर्ड नहीं, ट्रांसफॉर्म्ड। यानी कि वो ये कहते हैं कि इवन जनरल ज़ियाउल हक ने इसको प्रीएम्बल से उठा के आर्टिकल 2A में
सब्सटेंटिव पार्ट तो बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उसने इसका कोई रोल खास चेंज नहीं किया जो ओरिजिनली इन्विजिज था उससे, कि ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, आइडियोलॉजी डिफाइन करती है, और अगर कोई चीज इसके कॉन्ट्रडिक्शन में बनती है, कोई अथॉरिटी कोई फैसला करती है, कोई लॉ बनता है, तो वो पार्लियामेंट ही उसको दुरुस्त करेगी, कोर्ट नहीं करेगी. एनी इनकंसिस्टेंसी शैल बी रिजॉल्व बाय पार्लियामेंट. इवन फेडरल शरीयत कोर्ट जो रिलीजियस कोर्ट है, इट इज नॉट एम्पावर्ड टू डू दैट, बिकॉज फेडरल शरीयत कोर्ट भी जुडिकेचर का हिस्सा है, जुडिशरी का हिस्सा है, तो ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता, ये पार्लियामेंट रिजॉल्व करेगी. और वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी रेड एज अ होल, हेंस आर्टिकल 2 इज नॉट सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट सेल्फ एंड नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग. तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, अभी तक जो पोजीशन है कोर्ट की वो ये है. ठीक है, तो हमारे सामने हमने इंट्रोडक्शन देखा, बैकग्राउंड, इसके सेलिएंट फीचर्स, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रीमिसी ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, केस लॉज देखे, 8th अमेंडमेंट क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका सब्सटैंटिव पार्ट बना और उसका इम्पैक्ट क्या बना, और फिर कल्मिनेशन कैसे डिबेट हुई. हमने काफी सारे केस लॉज देखे एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑन ग्रेटर डेप्थ एंड विद अ लॉट ऑफ रिच कंटेंट, and I hope that this was helpful to you guys, and I'll see you guys next time.